College Principal, Dr. Lidwin Dias. I would like to request our principal to please give us the welcome address. Welcome, Lidwin ma'am. Thank you, Nilima. Good morning, everyone, and a very warm welcome to all our participants for this workshop on psychosocial well-being during COVID-19. I'm grateful to our resource person, Dr. Nilima Mehta, and the organizing team, Dr. Renu, Ms. Nilima Rodriguez, Mr. Sandesh, and Ms. Swati. This workshop will focus on psychosocial well-being, which is very important during this pandemic and lockdown period. The present situation from March 2020 has brought in a lot of challenges and uncertainties to you, my dear students. Uncertainties due to exams, jobs, financial security, family and social well-being, etc. We need to develop a positive attitude towards life and hope for the better, to recall positive life events, to be grateful, mindful, and kind. The more you grow into a helpful person, you will find this world a happier place. According to Abraham Maslow, if you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. I repeat, if you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Thus, it is important for us to believe in self as capable and happy persons. In the present situation of pandemic and coronavirus spread, we do not know what the future has in store for us, but it is up to us to make the best we can to face the future by preparing and savor the possibilities of what we can do in the present. Carl Roger, the well-known psychologist, says, "The good life is a process, not a state of being." I'm sure this workshop will help you towards the process of promoting emotional, psychosocial, and holistic well-being to be hopeful and also to give hope to the others. Dr. Nilima Mehta is the right person to help each one of us to grow in psychosocial well-being and face all life's challenges courageously, and also provide tips for us in order to help ourselves and reach out to others. A special thank you to you, Dr. Nilima Mehta. Thank you. To my whole team that is at the Extension Center, Anubhav Mumbai, and the technical team. I wish each one of you the best out of this workshop. Thank you. Nilima, you can take over. Nilima Rodriguez. Nilima Rodriguez, can you unmute yourself? Yeah. Thank you so much, ma'am, Lidwin ma'am, for your enriching and motivating words. अभी मैं अनुभव मुंबई प्रोजेक्ट के प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर संदेश लालगी को विनती करती हूँ कि वो अनुभव मुंबई प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दें. वेलकम संदेश. Thank you, ma'am. Anubhav Mumbai is a project of College of Social Work initiated in the 1997. अभी तक 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं
Anubhav Mumbai is working with the college youth from suburbans. हम कम्युनिटी से भी काम करते हैं, नॉन स्टूडेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स ग्रुप से हम काम करते हैं. अब ये सब करने के लिए अनुभव मुंबई के कुछ विजन्स हैं. तो विजन क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ यूथ एज ए कंसर्न सिटीजन्स कमिटेड टू द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. यूथ को एक जवाबदार नागरिक बनाने के लिए और उनको एक कमिटेड यूथ बनाने के लिए टूवर्ड्स दी सामाजिक बदलाव के लिए अनुभव मुंबई काम करती है. अब ये विजन को पूरा करने के लिए एक हमारा मिशन है. तो मिशन क्या है? तो एजुकेटिंग यूथ टू बी लीडर्स एंड चेंज एजेंट इन द सोसाइटी. यूथ को एक लीडर बनाने के लिए एंड चेंज एजेंट बनाने के लिए एजुकेट करना, तभी जाकर वो बदलाव के दौर में आ सकते हैं. अब ये बदलाव के लिए अनुभव मुंबई के कुछ कोर वैल्यूज है जिसके ऊपर अनुभव मुंबई काम करती है. तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने ये कोर वैल्यूज डिसाइड किए हैं. सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये हमारे कोर वैल्यूज है. ये कोर वैल्यूज को लेकर हम काम करते हैं. अब ये कोर वैल्यूज अगर यूथ में लाना है तो उसके लिए कुछ सिस्टम होनी चाहिए, इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. तो वो क्या है? 3 स्ट्रैटेजीज अनुभव मुंबई फॉलो करते हैं. एक यूथ मोटिवेशन, दूसरा यूथ एक्सचेंज एंड थर्ड यूथ फोरम बिल्डिंग. यूथ मोटिवेशन में यूथ को हम अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं. यूथ एक्सचेंज में यूथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, तब जाके उनकी आइडियाज़ शेयर होती है. एज वेल एज एनजीओज में जाकर वो अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं. यूथ फोरम बिल्डिंग में जैसे उनकी एक लीडरशिप डेवलप होती है तो वो अपना आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग तरीके से समाज में दाखिल हो जाते हैं. तो ये 3 स्ट्रैटेजीज है अनुभव मुंबई के जब यूथ के साथ हम काम करते हैं. नाउ ये स्ट्रैटेजीज अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास लेवल्स है, केडर बिल्डिंग के लेवल्स है. तो वो कौन सा है? मित्रा, सहयोगी, साथी एंड अनुभव समाज. नव मित्रा, जैसे हम फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स बनने के लिए 4-5 बार तो मिलना पड़ता है. तो सेम वे अनुभव मुंबई में हम 4-5 बार मिलते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब जाकर हम मित्रा बनते हैं. सहयोगी के लिए अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग देकर अगर हम कुछ करते हैं तब जाकर हम सहयोगी बनते हैं. देन साथी, साथी लेवल में आप हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम तो करते ही हो, उसके साथ साथ आप हमें कुछ आइडियाज़ भी देते हो और उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए नई नई टेक्निक्स भी हमारे साथ शेयर करते हो, तब जाकर आप साथी बनते हो. अब साथी बनने के बाद, एक डेवलप्ड यूथ होने के बाद अनुभव समाज एक स्टेज आती है. उसमें आप खुद होकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते हो, हमारे समाज में जाकर आप बहुत सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हो एंड उसके बाद अगेन अनुभव मुंबई के पास आकर शेयर करते हो कि हमने ये चीज़ें की है और अनुभव मुंबई के साथ में मिलकर समाज के बदलाव में हम हाथ बढ़ाते हैं. तो ये रहा एक प्रोसेस का भाग, कैसे केडर बिल्डिंग होती है. अब ये केडर बिल्डिंग करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. वो क्या है कि हर साल, इनिशियली हम हर साल एक थीम लेते थे, बट लास्ट 3 इयर्स से हमने क्या किया, 3 साल में एक थीम लेते हैं. तो लास्ट 3 साल में हमारी थीम थी यूथ पार्टिसिपेशन इन गुड गवर्नेंस. नाउ अगले 3 साल में, यानी इस साल से लेकर अगले 3 साल में हमने एक थीम डिसाइड की है. वो भी हमारे यूथ के साथ बातचीत कर कर, और यूथ ने ही वो सजेशन दिया है. आज का ये सिचुएशन देखकर यूथ ने हमें बताया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट विल बी द बेटर वन. तो अगले 3 साल तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पे काम करने वाले हैं. वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अनुभव मुंबई की और जानने के लिए बहुत सारे सेशंस आगे होने वाले हैं. और जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो पहले से अनुभव मुंबई से जुड़े हैं वो तो वेलकम है. जो आज नई तरीके से जुड़े हैं उनको अगर इस सारी चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे साथ बने रहिए. और आगे के सारे जो सेशंस रहेंगे, वेबिनार्स रहेंगे, वो अटेंड कीजिए एंड फिर हम जानेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ हम कैसे जा सकते हैं. तो फिलहाल के लिए अनुभव मुंबई में इतना ही. थैंक यू सो मच.
Over to ma'am. Ms. Rodriguez, please unmute. Yeah. I was trying, sir. Okay. Thank you, Sandesh. Thank you so much. It is a great honor to have with us today an eminent speaker, Dr. Nilima Mehta, who will be giving us an inputs on how to maintain our psychosocial well-being, not only during the period of this lockdown, but while dealing with the stresses related to pandemic of COVID-19. मैं इस वेबिनार में नीलिमा मैम का स्वागत करते हुए उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया. थैंक यू सो मच मैम. नाउ आई रिक्वेस्ट the program coordinator of the Extension Center, Ms. Larissa Miranda, to introduce Nilima ma'am. Welcome, Larissa. Dr. Nilima, you can go ahead. She said Larissa is speaking or Renu. Dr. Nilima Mehta is a social worker, counselor, life coach, and a psychotherapist by profession. She has completed her MSW and PhD in social work. She is proud to be an alumnus of the College of Social Work, Nirmala Niketan. Her areas of work are child protection, juvenile justice, and adoption. Her special interest is in human behavior and relationship management. Today, she will interact with us on wellness and well-being during a crisis, COVID-19. We welcome you, ma'am, for today's webinar. Thank you. Thank you, Larissa. Ms. Rodriguez, please unmute yourself. Yeah. Thank you, Larissa. Now I kindly request Nilima ma'am to begin her session. Over to Thank you. ma'am. Yeah, we look Thank you, forward- Nilima. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you. बहुत खुशी होती है कि हम आपके साथ है आज, साथ में इंटरेक्शन करेंगे इस कोविड सिचुएशन के साथ में मानसिक खुशी और मानसिक संतुलता के बारे में करेंगे. Thank you very much to Anubhav Bombay and College of Social Work for inviting me here. और आपके साथ जुड़ने में बहुत खुशी होती है कि अनुभव एक इतनी डायनामिक यंग लोगों की संस्था है और बहुत काम कर रही है. जैसे संदेश ने बताया कि up till now your focus was on youth in governance and the next 3 years focus will be on disaster management. I think this is a great, very relevant topic to talk about. So आज जो हम बात करेंगे, interact करेंगे, मैं 2-3 चीज आपसे कहने वाली हूँ कि पहले कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उसके बारे में आपसे शेयर करूंगी. किसी को भी प्रश्न है तो प्लीज उसी वक्त भी पूछ सकते हैं, एंड में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये एक इंटरैक्टिव सेशन होना बहुत जरूरी है ताकि आपके मन में जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करें.
अभी आपका अगर म्यूट होगा तो जरूर अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि कोरोना के दौर में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें। तो मानसिक, साइको, सोशल, इमोशनल 3 चीज है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। साइको यानी मानसिक दृष्टि से, सोशल यानी सामाजिक दृष्टि से, और इमोशनल यानी अपनी भावना के दृष्टिकोण से हमारी वेल बीइंग क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग क्या है वो हम समझेंगे और उसके बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करें तो बहुत से लोगों को एक तरह की, जैसे हमने बहुत सेमिनार्स किए हैं, एक तरह का बर्नआउट होता है। देयर इज अ सेंस ऑफ बर्नआउट एंड व्हाट वी कॉल थकान। जो मानसिक थकान हुई है उसके बारे में हम क्या करें, उसे कैसे कोप करें, उसकी एक इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन, अनप्रेसिडेंटेड। तो होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस 2 इमोशंस लोगों ने शेयर की है कि हमें एक तरह की एक होपलेसनेस देयर that we don't know what to do and we don't know what will happen, which is a helplessness. So ये दोनों से 2 इमोशन जो आते हैं उसे कहते हैं gloom and doom. So let's talk about bringing positivity back. सकारात्मक विचार कैसे करें और एक ऐसा महसूस करें कि भाई जो संजोग है जो हमारे हाथ में बदलने का हमारे पास सक्षम नहीं है, लेकिन उसे कोप करने की शक्ति हम कैसे डेवलप करें, उसकी सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक आपसे पहले करते एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो मैं बोलूं आप सुनिए बराबर, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट 1 आवर, जो 1 घंटा हम आप साथ में हैं, उसके उस टाइम पे आप बंदर के बारे में न सोचिए। यू गॉट इट? सबने सुना? बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर के बारे में सोचा? यही एक साइकोलॉजी का विषय है कि जो व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, यानी जो हम कहते हैं कि मत करो वो ही करने का मतलब होता है। तो इसलिए मैं अगर आपसे कहूँ कि आप नेगेटिव थॉट्स डोंट ब्रिंग इनसाइड योर सिचुएशन, इट विल श्योरली कम। So what is important is to focus on what we want rather than what we don't want. जैसे एक एग्जाम्पल है कि the rose has thorns or thorns have roses is a matter of perception. ये हमारी सोचने की दृष्टिकोण है, नजरिया है, और सोचने का जिसे कहते हैं perspective and perception. So a rose has a thorn and thorn has a rose are both correct. दोनों चीज हकीकत है, रियलिटी है, लेकिन कौन सी चीज हमें ज्यादा खुशी देगी कि हर एक फूल को थॉर्न है या थॉर्न को फूल है? तो ये आप सोचिए। दूसरी बात है, इंग्लिश में देयर इज अ डिजर्ट कॉल्ड डोनट। सो वी हैव अ चॉइस अगेन कि हमारे पास ये चॉइस है, यानी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम डोनट को कैसे देखें। डोनट हैज अ होल और एवरी होल हैज अ डोनट, यानी किस बारे में हमें खुशी है कि ये एक इट्स अ वेरी नाइस स्वीट एंड इट हैज गॉट अ डोनट बट आई डोंट लाइक द होल। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी आइडेंटिटी has 2 sides and your choice is to see which side. हिंदी में कहेंगे तो ये उसे एक मेदू वड़ा कहते हैं। तो आपको मेदू वड़ा पसंद है, पर मेदू वड़ा का जो अंदर एक होल है वो मुझे नहीं पसंद है, तो वो भर देते हैं। वो भर देंगे तो मेदू वड़ा की आइडेंटिटी चली जाएगी और वो एक वड़ा हो जाएगा। Are you with me on this? Yeah? Okay. So I continue. So मेदू वड़ा एंड डोनट्स से हमें बहुत सीख मिलती है, वो है सकारात्मक सोच and positive way of approaching life situations. So today we will start with understanding 3 concepts. एक है मानसिकता में कैसे पॉजिटिविटी लाना, सामाजिक सिचुएशन जो फिजिकल सिचुएशन है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम कैसे अपने आप पर कैसे कंट्रोल लाए, कंट्रोल के बारे में बात नहीं है, हाउ टू शिफ्ट आवर पैराडाइम ऑफ थिंकिंग।
So the whole focus is about attitudinal shift, पैराडाइम शिफ्ट इन कॉग्निशन, जिसे कहते हैं हमारी सोच, और जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी भावनाएं होगी. Should I continue? Is everybody with me? Any feedback? Okay. So मैं आपको कुछ दिखा रही हूं अभी. सबको देख रहा है? Okay. Can we unmute the mic? And anybody wants to answer this question? How many squares do you see? आपको कितने squares दिखाई रहे हैं? किसी को interact करना हो तो आप अपने आप को unmute कीजिए. बराबर. किसी ने कहा 9, 10 कहा, 14 कहा. Perfect. देखिए, बस let's stop now. सब लोग एक ही चीज देख रहे हैं जो है एक स्क्वायर. 3 जवाब मिले, 9, 10 और 14. ओके, आई एम पुटिंग दिस डाउन नाउ. सो एग्जैक्टली ये है कि अभी जो कोरोना की कोविड-19 की सिचुएशन है, हर एक का दृष्टिकोण इसके बारे में अलग अलग है. सो वी लुक एट द सेम सिचुएशन बट वी रिएक्ट, वी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली from our own thought process. हमारी जो सोच है, correct, somebody is saying now 14. So now 10 और 14, ये 3 जवाब मुझे मिले. तो my question was, आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? तो अगर मेरा प्रश्न ये है कि how many do you see, all 3 are correct answers. 9, 10 and 14. Yes, Vaishnavi. Your 14 is your answer. So you can see 9, 10 and 14. The question was, how many do you see? Now my question is, how many squares are there? जो पहला प्रश्न था उसमें जो भी आप रिप्लाई दोगे वो ठीक है क्योंकि वो आपकी दृष्टिकोण से है. अभी जो प्रश्न है, how many squares are there? यानी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है और कितने स्क्वायर्स है, उसमें एक ही हकीकत हो सकती है. हकीकत जिसे कहते हैं रियलिटी, जो है वो है, ये है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ये बड़ा वाला 10 और अंदर 4 जुड़े हुए हैं. ये है एक स्क्वायर, ये है दूसरा स्क्वायर, ये 3 और 4. सो टोटल 14 स्क्वायर्स हुए. 4 जो है अंदर है वो शायद हमें immediately दिखने हैं. So this is what we need to understand, that the reality, there is a foreground and there's a background. In the background sometimes we don't see what exists and we only see what we can see immediately from our reaction, not our response. Reaction और response के बीच में जो pause होता है, जो सोचते हैं, उसे कहते हैं response. तो उसमें हमारी मानसिकता, हमारी सोच उसमें आती है और हम प्रोसेस करते हैं. सो हमारे पास जो इमोशंस है उसके लिए 3 ऑप्शंस है. सप्रेस, क्या सप्रेस है एक इमोशन, एक्सप्रेस है और प्रोसेस है. जो हम प्रोसेस करेंगे उस पॉज के साथ, तो हमें कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना, उसके बारे में हमें पॉज मिलेगा और सोच मिलेगी. सो इस बैकग्राउंड से हम शुरू करते हैं हमारे आज का विषय, जिसे कहते हैं साइको सोशल इमोशनल वेलबींग. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ. Okay, is everybody with me? Okay. Can we request for there has been a request for okay. Please feel free to unmute and talk, okay? Suppress, process and express, right? So process is the last. We either try to suppress it, we express it, या we process it. Suppress यानी उसको अंदर दबा देना, carpet, like we say, brush it under the carpet.
he shouldn't be really doing that because it will always come out with double force. Express करेंगे तो it will come in the form of anger, aggression, किसी और पर गुस्सा निकलेगा, किसी और को हम कुछ बोल देंगे, that is called express. लेकिन process करेंगे, it is in the time of the pause, जिसे कहते हैं हम रुक कर सोचेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए या ना करना चाहिए, ये हमें प्रोसेस करेगा. ये जीवन में सीखना बहुत जरूरी है. It's very important to not just react without thinking, but to pause, process, and then speak. In everything in life, whether it's a work world, whether it's a profession, हम घर में अपनी फैमिली के साथ बात करें, हमारे दोस्त के साथ, हमेशा जो वर्ड्स बाहर निकल जाते हैं वो हम वापस नहीं ले सकते. उनकी जो इम्पैक्ट हो गई वो हो गई. सॉरी कहने से शायद वो चीज पूरी वापस सिचुएशन में नहीं चली जाएगी. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है that before we speak, we process and we then talk. Okay, so now that I'm going to the title of this this discussion today, इसे कहते हैं discussion points, psychosocial emotional well-being. तो 4 शब्द है, उसके बारे में समझे. साइको यानी मानसिक, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जिसे कहते हैं cognition, सोच, you can call it thought process, is all in the mind, and that is the psychological component. Social यानी भावना, social यानी सामाजिक situation जो जिसमें हम रह रहे हैं. अभी जो सामाजिक situation है बहुत तनाव की है, बहुत टेंशन की है. There's a lot of anxiety, uncertainty. तो उसके बारे में जिसे कहते हैं हमारी social environment है. इमोशनल यानी हमारी भावनाएं उसके साथ में क्या जुड़ी है. तो आई फील वेरी एंशियस, जैसे मैंने कहा, एक मानसिक थकान, इट इज इमोशनल स्ट्रेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्ट्रेस एज एन इमोशन, और उसके साथ में जुड़े वेल बीइंग यानी हाउ डू आई फील बेटर, हाउ डू आई फील कंटेंट, हाउ डू आई फील एक तरह का रूटेडनेस कि मैं इसे कोप कर सकती हूँ. इसे मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आई कैन ट्राई टू कोप एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन. कब? ड्यूरिंग क्राइसिस. क्राइसिस एक शब्द है जिसे आपने कहा डिजास्टर. सो डिजास्टर इज गोइंग टू बी योर फोकस ऑफ अनुभव इन द नेक्स्ट 3 years. सो आज ये शुरू हुआ है, तो इट्स अ वेरी अप्रोप्रिएट सिलेक्शन जिस अनुभव ने की लिया है कि क्राइसिस में हम आगे, डिजास्टर में हम आगे कैसे करें. तो आज कोविड-19 का फर्स्ट क्राइसिस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो ये हैं हमारे डिस्कशन पॉइंट्स. सॉरी, इट्स जस्ट गॉन बैक. Okay, so now we are going at the first slide to understand wellness and well-being. So दो शब्द है. Would somebody like to share कि wellness और well-being आपके हिसाब से क्या है? Okay, so कोरोना के दौर में अगर मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करें तो खुद की देखभाल करना सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को इसमें कैसे वेल बीइंग और वेलनेस में हम सोचें. तो डायमेंशन ऑफ वेलनेस एंड वेल बीइंग इज होलिस्टिक इंटीग्रेशन. जैसे हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर लिडविन ने कहा कि होलिस्टिक वेल बीइंग और इंटीग्रेशन का इतना महत्व है कि हम फ्रैगमेंटेड अलग अलग चीज से ना देखें, लेकिन एक पूरी होलिस्टिक देखें. जैसे एक एग्जाम्पल था कि किसी को ब्लाइंड मैन को हाथी दिखाया गया ब्लाइंड फोल्ड करके कि आप इसको क्या है वो बताइए. तो उनका इट वाज ब्लाइंड फोल्डेड. तो किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी और कहा हाथी तो एक ऐसा रोप जैसा होता है. किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हाथी तो एक बड़ा पेड़ होता है उसका पैर जैसा है.
किसी ने हाथी के कान पकड़े तो कहा नहीं नहीं, हाथी तो एकदम सॉफ्ट और मैलिएबल होता है, इतना है। तो ये जब उनका पट्टी निकाला दिया गया, तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड, इज दिस व्हाट एलिफेंट लुक्स लाइक? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to take a holistic integrated perspective situations in life, ki see the elephant as a whole, not from what your perception is, not from just a part perception, but from a whole. So nazariya, drishtikon, perception, perspective, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो first one in dimension of well-being is mental, कि जैसी सोच वैसी भावना, जैसी भावना वैसा व्यवहार. सो अगर आपको व्यवहार यानी बिहेवियर चेंज करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले अपनी सोच. मेंटल यानी एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द माइंड. सो माइंड इज लाइक द डेविल एंड माइंड इज ऑल्सो लाइक द solution to every problem. So first focus हमें दिमाग पर, हमारी सोच पर करना है. दूसरी है जैसी सोच वैसी भावनाएं, तो हमारे इमोशन पर हम फोकस करेंगे. तीसरा है साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल यानी सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं, माइंड जो विचार करेगा उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल. उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है स्पिरिचुअल. स्पिरिचुअल यानी बहुत से टाइम हमें रिलीजन और स्पिरिचुअल हम मिक्स कर देते हैं. नहीं, स्पिरिचुअल यानी एक ऐसी भावनाएं जो हमें एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग पे ले जाती है विथ ऑब्जेक्टिविटी, और ऐसी सोच के ह्यूमन वेलफेयर. हम अपने आप के बारे में सिर्फ न सोचे, बट ग्लोबल और लोकल और अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में, वेलफेयर ऑफ एवरी बीइंग विथ कंपैशन, केयर एंड कंसर्न, वो देखेंगे. उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी. वेल-बीइंग ऑफ एवरीबॉडी, वेलनेस ऑफ माई सेल्फ एंड वेल-बीइंग ऑफ एवरीवन. The next, as I explained, was environmental, means जो हमारे आसपास हो रहा है, हमारी फैमिली है, हमारा घर है, हमारी वर्क एनवायरनमेंट है, कोविड-19 का सिचुएशन है, कोरोना वायरस की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में हमें बहुत सुविधाएं समझनी चाहिए. तो ये एनवायरमेंटल है जो हमारी सिचुएशन में है, जिसके ऊपर हमें शायद ज्यादा कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन किसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग. दूसरा होता है फाइनेंशियल. सो फाइनेंशियल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट है, पर लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दैट इट इम्पैक्ट्स आवर होल वेलबींग, physically, mentally, emotional. So physical well-being is the basis of everything else. So simply put, if we say a state of feeling healthy and happy, तो आप समझ गए कि well-being का मतलब क्या है. दो component है, feeling healthy and happy. Healthy is not merely absence of a disease. World Health Organization has defined mental health or health as not merely an absence of disease, which means कि सिर्फ आपको illness नहीं है तो आप healthy हैं, वो बात नहीं है. आप healthy और happy होने के लिए आप एक मानसिकता develop करनी चाहिए, जिसे कहते हैं healthy and happy well-being. Any questions? Should I stop or can I continue? Is everybody okay? कुछ कहना है? Okay. Thanks for your reply. Okay, perfect. Understanding crisis. So next शब्द जो हमें समझना जरूरी है वो है crisis. So for crisis क्या है? First and most important to understand is threatens the well-being of a person and society. यानी जो हमें एक महसूस करते हैं, जो भावना कि मेरा समतुलता है, मेरा समता है, वो एक थ्रेटन हो जाता है. मैं नहीं इसे कोप कर सकती हूँ, इससे इंडिविजुअल है एंड सोसाइटी है. यानी सामाजिक दृष्टिकोण पे और मैं अपने आप से बोलूँ तो ये मेरी थ्रेटन्स द वेल-बीइंग. तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस. डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस इज कि कोई भी संजोग आए, अगर मैं उसे कोप कर सकती हूँ, then it is called positive stress. But when I can't handle it, it's called distress. So distress, eustress and positive stress.
पॉजिटिव स्ट्रेस कैन बिकम अ मोटिवेटर, हमें कुछ आगे बढ़ने की एक प्रोत्साहन देता है. While a distress is a situation where you feel unable, you feel threatened with the well-being of myself as well as society. That's the first explanation. Second is normal coping mechanisms and capacity become inadequate. यानी हम रोज के संजोग में, जैसे आप यूथ हैं, आप काम पे जाओगे, सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे उठकर ये करना है, फिर खाना बनाना है, डब्बा ले जाना है, 7:30 की ट्रेन लेनी है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, ये आपका रूटीन हो गया है, तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म्स विल बी फाइन, आप कर पाओगे. आज का सिचुएशन थोड़ी अलग है कि मुझे खाना भी बनाना है, घर में साफ सफाई भी करनी है, मदर को भी मदद करना है. I will not be able to cope because I have so much work, plus I have to work from home. So your normal coping mechanisms and the capacity becomes inadequate. Inadequate यानी जो आपकी क्षमता थी वो थोड़ी कम हो जाती है और ऐसा overwhelming feeling होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी. तो ये inadequacy है, उसके कारण stress हो सकता है. Next है, it leads to क्या? उसकी consequences are there: unstable, uncertain, unpredictable situation for the present and the future. तो ये situation ऐसी है कि हमने कभी उसकी, have we faced it ever before like this? No. We've had tsunami, we've had earthquakes, we've had communal violence, everything. We've had many disasters, man-made or natural disasters, but we have never had a situation of lockdown for 3 months. So this is a new situation which creates, first thing is instability. We don't feel stable, yani we don't feel balanced. We feel a little like that, and we are shaken. So that's called unstable. Second one is called uncertain. आपको पता है कल क्या होने वाला है? नहीं. आपको पता है 15 दिन के बाद क्या होने वाला है? आपको पता है ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? आपको पता है कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कब तक चलेगा? नहीं. हर एक, आपकी जॉब रहेगी कि नहीं, आपका सैलरी फुल आएगी या 50% आएगी कि नहीं, ये सब अनसर्टेनिटी है, उससे बहुत तनाव होता है. तो आज हम तनाव के बारे में बाद में बात करेंगे. सो अनसर्टेनिटी के कारण हमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो जाती है, यानी हम कुछ नहीं कह सकते अब क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है और 10 दिन के बाद क्या. So this is called unpredictability for the present and the future. When you have a situation like this, it creates anxiety, it creates worry, and it creates a feeling of stress. So we are going to talk about that later. तो तीसरा point है, it's a testing time for all individuals and systems, micro to macro, that threatens the safety of society. तो मैंने अब तक बात की अपने बारे में, that is called self management. मैं अपने आप को कैसे कोप करूं. अभी दूसरी testing time is what, that जैसे आपकी परीक्षा होती है, एग्जाम होती है, आपने क्या पढ़ा, आपको क्या याद है, आप क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप परीक्षा कैसे देंगे, तो उसे कहते हैं टेस्ट. तो हमारे जीवन में भी ये एक टेस्टिंग टाइम है कि पहले जो हम छोटे थे, अभी वी आर द यूथ एंड वी आर द यंग. यू आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, जिसे कहते हैं यूथ. बच्चे, चिल्ड्रन आर वल्नरेबल एंड डिपेंडेंट, old people are vulnerable and dependent, but youth is the backbone of society. So आपके ऊपर बहुत निर्भर है कि आप कैसे ये सिचुएशन को कोप करें और सबकी क्षमता के बारे में आप सोचें. So it's a testing time for all individuals as well as system, but most importantly for the youth to be able to cope and look after people in their life. So micro to macro, जैसे family is the micro situation, macro is the state government, macro is the national government, and a global scenario of COVID-19. ये पूरी सामाजिक ग्लोबल एंड लोकल लेवल पे देखेंगे तो एक थ्रेटनिंग होता है कि हमें डर लगता है कि आगे क्या होगा. सो आवर फोकस नाउ इज ऑन psycho-social emotional implications for youth. आज का जो वेबिनार है, आज की जो इंटरेक्शन है, इसके ये डिस्कशन पॉइंट्स है, किसके ऊपर है? फोकस इज ऑन यूथ. Focus is on Anubhav. Anubhav has taken a great, with the College of Social Work as a project of the college, has taken a great initiative
according to me, in talking about this situation so that we all feel empowered. हमें ऐसी फीलिंग्स ले कि अब तक था, अभी मैं क्या करूं. आप हाथ देखेंगे तो भी आपके हाथ ऐसे मूव करेंगे. अभी एक तरह की सिचुएशन हम लाना चाहते हैं कि आप सोचेंगे कि हाँ ये तो है, लेकिन उसको हैंडल करने में, उसको कोपिंग में आज के बाद मुझे एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिला है कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसे कोप कर सके. इसके हम सामाजिक दृष्टिकोण से, इमोशनल दृष्टिकोण से, एंड फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वी विल बी एबल टू कोप विथ crisis. Is everybody with me? Okay. All right. So ये new situations encountered. Thank you for your feedback. Yeah. So ये new situation में क्या चीज है? First is work from home. Work from home is a new routine. सुबह उठ के तैयार होकर ट्रेन पकड़ के बस लेकर हम काम पे जाते हैं. काम में 9 से 6 काम करते हैं और वापस आते. वो हमारा रूटीन था. अब हमारा रूटीन क्या है? इट्स कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम. दिस इज अ न्यू रूटीन. एनीथिंग दैट इज न्यू इन लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजिंग. You can handle it, you feel happy, but if you can't handle it, you feel overwhelmed. When you feel overwhelmed, you say, अरे मैं क्या करूंगी? So क्या क्या changes आए हैं in work from home? A new routine. Change of space and change of pace. Change of space यानी जहां से हम काम कर रहे हैं वो अब घर हो गया है, तो अपनी फिजिकल स्पेस बदल गई, हम घर में काम कर रहे हैं. फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया है. Change of word from social distancing to physical distancing. We understand that it began by being called social distancing, but we are reframing the word to call it physical distancing. यानी इमोशनल और सोशल हमें डिस्टेंस नहीं रहना है. हम किसी को मिलेंगे, किसी से बात करेंगे टेलीफोन पे या सामने, तो फिजिकल डिस्टेंस ऑफ कम से कम 6 feet or 1 meter, whatever, I don't know what the meter by, but 6 feet कम से कम. Please post your questions. Yeah, okay. Renu, thanks for doing that. Please post your questions, and Renu, you take up the questions later. Okay, thank you. So ये जो physical distancing का concept है, वो हमें समझना जरूरी है. Now, the other situation is too many people at home. Family problems. इतने लोगों के साथ रहना, सिर्फ रात को आकर सुबह तक रहना easy था. अभी 24/7 all the time becomes a problem. It's not we don't love the people at home. हम उनके साथ में जुड़ाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने लोगों के साथ 24/7 रहने की हमें आदत नहीं है. और बहुत से फैमिली प्रॉब्लम्स जो अंडर द कार्पेट थी वो अब सामने आती है और हम सोच रहे हैं हम कैसे उसको कोप करें. सो वर्क फ्रॉम होम का प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है. इतने लोगों को साथ में देखना भी इमोशनली डिफिकल्ट है इंटरैक्शन के बाद. दूसरा किसी और की प्रॉब्लम्स हमने टेलीफोन काउंसलिंग में या हमारी वेबिनार्स में देखी हैं, जिसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन. तो सोशल आइसोलेशन क्या है? ऑपोजिट ऑफ टू मेनी पीपल एट होम. बहुत से लोग हमने देखे हैं कि सिर्फ अकेले घर पे रहते हैं. मेरे पेरेंट्स तो दिल्ली में हैं, मेरे पेरेंट्स मुजफ्फरपुर में है, कर्नाटका में है, केरला में है. मैं तो बम्बई में काम पे आया और मैं अकेला गोवंडी में रहता हूँ, मैं रहता हूँ मलाड में, मैं रहता हूँ दादर में. मैं सिर्फ अकेला अपने घर पे हूँ. तो जिसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन. लोगों का मिलना नहीं हुआ. मैंने किसी और को देखा नहीं है. एक महीना हो गया, 30 days के बीच में मैंने किसी से इंटरैक्शन भी नहीं किया. तो ये सोशल आइसोलेशन, इमोशनल आइसोलेशन में एक तनाव की भावना क्या होती है कि मैं अकेला हूँ. तो ये अकेलापन की भावना कभी कभी हमको अच्छी लगती है कि आई एम हैप्पी टू बी अलोन. सो बीइंग अलोन इज अ पॉजिटिव फीलिंग. बीइंग लोनली इज अ नेगेटिव, इमोशनली डिस्टर्बिंग फीलिंग. तो आप ये समझना बहुत जरूरी है कि आइसोलेशन के 2 होते हैं, अलोन एंड लोनली.
What if a person is staying all alone? यही हम बात करें कि जो व्यक्ति अकेला रह रहा है उसे एक ऐसी भावना होती है कि सोशल आइसोलेशन, मैं तो सबसे अलग हो गई, एक लोनली फीलिंग होती है। कभी कभी आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लोनली नहीं लगता है, मुझे क्या लगता है, हाश मैं अब अकेली हूँ, मेरा वक्त मेरा, मेरी फिजिकल स्पेस मेरी, मेरी सोच मेरी, मैं अपने आप के साथ जी पाऊंगी। सो नीड्स अलग होती है, फीलिंग्स अलग होती है, और हर एक का रिएक्शन रिस्पॉन्स अलग रहता है। सोशल आइसोलेशन नेगेटिव होता है, सोशल डिस्टेंसिंग और फैमिली प्रॉब्लम्स और फिजिकल डिस्टेंसिंग हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। The next one is miss human interaction with colleagues and friends. आप इससे साथ आई एम श्योर बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम दोस्तों को मिलने इतना मिस कर रहे हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन फैमिली के साथ तो है, लेकिन कलीग्स और फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रहे हैं। हमारी रेजो डेथ्रो जो जिसे कहते हैं लाइफ में इकिगाई थी कि हम अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ मिले, डिस्कशन करें, कुछ सीखे और समझे, वो एक बहुत मिस हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के साथ too much interaction. The new word that has been coined in the COVID-19 is called Zoom fatigue syndrome. सुना आपने? Zoom fatigue syndrome. So Zoom is not about the Zoom as a program, but technology screen fatigue syndrome. कि स्क्रीन के ऊपर जो पहले हम 2 घंटा काम कर रहे थे, अभी आप एवरेज देखेंगे तो 7 घंटा, 8 घंटा. At the end of the day, when you get your thing, how much was I on the screen? And it's say, oh my God, 8 hours? Where was the human interaction? All through the screen. And that is called a Zoom fatigue syndrome. Yes, I can see that people are saying, yes, ma'am. Everybody seems to feel what is called too much interaction with technology and screen time. This is our challenge. So new challenges come with new situation in the time of crisis, or what we call COVID-19. The last one I am saying is burnout. How does a person know if the other? Okay, we'll come to questions later. At the moment, we'll finish the salient discussion points. Is that okay? Yeah, we'll do that. So burnout and emotional fatigue, जो हिंदी में हम कहते हैं कभी कभी मानसिक थकान। मानसिक थकान ऐसी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, मैं इतनी थक गई हूं। मुझे सहानुभूति से भी थकान लगती है। सहानुभूति थकान हम जो केयर गिवर्स है, जो हम लोगों के साथ काम करते हैं, जो सोशल वर्क में है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो टीचर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है, उन्हें एक इमोशनल फटीग होती है, बर्नआउट होता है, और एक ऐसा महसूस होता है कि सहानुभूति से भी मुझे थकान होती है। अभी कितना मैं अच्छी तरह बात करूं, केयर, कंपैशन, कंसर्न लोगों के पास बात लिए है, लेकिन मैं अपना कैसे सेल्फ केयर, वो हम आखिर में करेंगे। आखिर में जिसे कहते हैं सेल्फ केयर, अपने आप को हम कैसे दिखे जो प्रोफेशन में है, of helping professions, whether you're a counselor, you're a life coach, you're a social worker, you're a teacher, whatever, no matter what your profession, it's called a helping profession. अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो इमोशनल फटीग और सहानुभूति से थकान ये एक रियलिटी है। और खुद की देखभाल हम कैसे करें, सेल्फ केयर मीन्स खुद की देखभाल हम कैसे करें, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो हमारे यहाँ जब इमोशनल फटीग होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे कहते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उसकी एक फिजिकल कंपोनेंट भी है, इमोशनल साइकोलॉजिकल तो है, लेकिन हमारे अंदर भी जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसे हमें ज्यादा तनाव महसूस होता है। सो भावनाओं क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं वो समझना भी जरूरी है। और टू नेम इट and tame it. English में एक there is, wait, I'll just come to it. Okay.
Now we are talking about emotional response and concerns. English में एक there is a saying, name it to tame it. यानी जिस भावना आप महसूस कर रहे हैं उसे आप एक्सप्रेस करोगे, यानी एंगर में throwing things, upset with people, shouting, aggression. It's not. When you explain the word, explain rather than express, तो उसे कहते हैं name it and tame it. तो उसका आप शब्द यूज करो कि मुझे I'm very upset, I'm very angry. नहीं, हर एक भावना के अलग अलग शब्द हैं. तो how to use emotional responses and concerns, we are talking about that now. Is everybody with me? Okay. I have a habit of asking every time that are you with me, because I usually see faces and interact with people, so it feels nice to see eyes and it's nice to see faces, but I'm glad that I get a feedback to say yes ma'am, everything is okay. So good. So emotional responses and concern, यानी हमारी मानसिक दृष्टिकोण से कौन से शब्द हम यूज करेंगे समझने के लिए. तो हम शुरू करेंगे. थैंक यू, वी कैन अंडरस्टैंड, परफेक्ट. तो पहला शब्द ऊपर से शुरू करेंगे, एंजाइटी. एंजाइटी फॉर द फ्यूचर एंड वरी फॉर द पास्ट इज अबाउट इमोशनल रिस्पॉन्स. यानी मानसिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो कहेंगे कि एंजाइटी किसके बारे में होती है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कोप करूंगी कि नहीं. सो इट्स यूजुअली एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, यानी आगे क्या होगा उसके बारे में जब हम सोचते हैं उसे कहते हैं एंजाइटी. पीछे जो चला गया उसके बारे में हम सोचेंगे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब मैं क्या करूं, उसे कहते हैं वरी. सो वरी एंड एंजाइटी आर नॉट only past and future, but they get mixed up. Worry of the past and anxiety for the future are emotions that are debilitating. उससे जिसे कहते हैं कि anxiety is like a rocking chair. एक बहुत अच्छा example है in English कि एंजाइटी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर. रॉकिंग चेयर क्या है, वो जो ओल्ड ग्रैंडफादर होते हैं ना, बैठते हैं और आगे पीछे चलते रहते हैं. सो द रॉकिंग चेयर कीप्स मूविंग, बट डज इट टेक यू एनीवेयर? डज द रॉकिंग चेयर टेक यू फ्रॉम हियर टू देयर, फ्रॉम देयर टू देयर? नो, it just sits in one place, keeps moving. So you see, yeah, movement is very good, but not the movement of a rocking chair, because it just keeps you engaged in anxiety, worry, anxiety. Okay, so anxiety is like a rocking chair, keeps moving but takes you nowhere. That's anxiety. दूसरी है डिप्रेशन. डिप्रेशन यानी एक भावना जो नेगेटिव थिंकिंग से आती है, जिसे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और सिर्फ इमोशनल रिएक्शन होता है. डिप्रेशन इफ इट्स क्लिनिकल, डॉक्टर को बताने, साइकियाट्रिस्ट या किसी की कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है. Please do not handle any serious depression which is diagnosed as clinical depression by yourself. Seek help. किसी से पूछना, किसी की मदद लेना, nothing wrong with depression. Depression एक ऐसी इमोशन है जिसके ऊपर अगर हमारा जैसे हमें फीवर हो, हमें स्टमक अपसेट हो, कुछ भी हो, तो हम लोग डॉक्टर से दवाई लेंगे ना, उसमें कोई स्टिग्मा नहीं है. देयर इज नो हेजिटेशन. Same thing for depression. Don't think you can handle it yourself. You may be handled, but you can talk to friends, you can talk to well-wishers, you can talk to your colleagues, but depression needs to be addressed. Anger and aggression, दो emotions है जिसे कहते हैं sometimes worry about the past. Yes, so we do worry about the past. Anger and aggression is what is called expression, venting out rather than processing. So when you have anger and aggression, यानी आप जैसे रबर बैंड होता है ना, मेरे पास है नहीं, लेकिन रबर बैंड को आप खींचेंगे ना तो वो वापस जब आएगा डबल फोर्स से आता है. Then you have a jack in the box. आप घुमा के एक ऐसा टॉय होता है, दबा दबा के अंदर रखेंगे, जब वो बाहर होगा एक डबल फोर्स से बाहर होगा. तो एंगर एंड अग्रेशन ऐसे हैं. उसे प्रोसेस करो, उसे समझो, उसे एक्सप्लेन करो, उसे एक्सप्रेस मत करो. एक्सप्रेस करेंगे तो उसे गुस्सा आ जाता है और सामने के व्यक्ति के ऊपर अपना गुस्सा आप निकालते हो. दिस इज नॉट फेयर. इमोशन हमारे हैं, एंगर हम हैं, आप किसी और के ऊपर क्यों करें?
इनकी कोई गलती नहीं है। अगर इनकी गलती है तो भी हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हमारे इमोशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए ना। उसके कारण हुआ, अरे उसके कारण कैसे हुआ? उसने कुछ कहा, लेकिन क्या करना मेरे हाथ में है ना। क्यों मेरे हाथ में? बिकॉज आई हैव अ चॉइस। ये मेरे इमोशंस है, मेरी सोच है, मेरी भावना है, मेरा एंगर है, मेरा आग्रह। तो मैं वहां फिंगर क्यों पॉइंट करूं? अगर मैं फिंगर सिचुएशन, लोगों के ऊपर, उसके कारण करूंगी, तो ये जो 3 फिंगर्स है मेरे सामने है। तो दीज 3 फिंगर्स आर टेलिंग मी, अंदर झांको, अपने अंदर देखो कि क्यों मैं ऐसे हो रहा हूं। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग एंगर एंड अग्रेशन। स्ट्रेस, ये सब के कारण एक तनाव का महसूस होता है। तनाव यानी क्या? स्ट्रेस। इनएबिलिटी टू कोप विद अ सिचुएशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। डिस्ट्रेस होता है, यूस्ट्रेस होता है और स्ट्रेस होता है। 3 तरह के। जब आप स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। जब आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, इंटिमिडेट हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस एंड यू कांट कोप विद इट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द वर्ड टुडे इन ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। दैट स्ट्रेस को आप हैंडल करो, आपकी लाइफ हो जाएगी। स्ट्रेस इज वन पार्ट ऑफ व्हाट वी आर, इट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। वी नीड व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। अपने आप को मैनेज करूं तो उसमें एक कॉर्नर में स्ट्रेस आ गया, उसमें टाइम है, फीलिंग्स है, ये सब बहुत सेल्फ मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ हार्म एंड सुसाइड। बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अपने आप पर गुस्सा करते हैं, अपने आप को हार्म करते हैं। यानी कभी कोई लोग, मैं क्या करूं उसके बारे में, तो अपने आप को स्लिट करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी अपनी ओवर पिल्स ले लेते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। तो सेल्फ हार्म यानी एंगर, फ्रस्ट्रेशन गॉन इनवर्ड। जब अपने आप को ओवरवेल्म, इंटिमिडेटेड, डिप्रेशन, एंगर से होते हैं, तो सेल्फ हार्म बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। वंस अगेन you have to take professional help. Professional help यानी किसी जो इसके लिए सक्षम है, क्वालिफाइड है, उनकी मदद लेना बहुत जरूरी होता है। सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, सेल्फ हार्म होता है, डिप्रेशन होता है, प्लीज टेक प्रोफेशनल हेल्प। ओवरवेलमिंग इनसिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, ओवरवेलमिंग इनसिक्योरिटी यानी आगे क्या होगा, अभी मैं क्या करूंगा, बीच बाद में क्या होगा, तो ये ओवरवेलमिंग इनसिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी। दूसरा है ग्रीफ एंड पेन। एंगर एंड अग्रेशन इज आउटवर्ड, grief and pain is inward. Cycle of grief, first cycle says denial. हम नहीं, ये नहीं होता है, मुझे नहीं होने वाला है, सबको होगा, हमारे यहाँ कोविड नहीं आएगा, हमारे बिल्डिंग में नहीं आएगा, हमारे नेबरहुड में नहीं आएगा, हम कंटेनमेंट जोन में नहीं है। लेकिन फर्स्ट इज डिनायल. After denial, you know, we all study in psychology, in social work, in psychotherapy, the grief cycle. Grief cycle, Kubler-Ross जो एक very well known psychiatrist है, सॉरी देयर वाज अ मैसेज, साइकोथेरेपिस्ट है, उसने कहा कि ग्रीफ एंड पेन को कोप करने के लिए एक बहुत सक्षम और इनर स्ट्रेंथ चाहिए. फर्स्ट इट्स डिनायल, देन यू गो इनटू पिटी मोड कि क्यों मुझे हुआ, मैंने किसका, आई हैव नॉट हार्म्ड एनीबॉडी, क्यों हमें ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे पेरेंट्स को लगा, क्यों ये हुआ. तो ग्रीफ एंड पेन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. To understand that is pain grown inward is grief and जिसे कहते हैं दुख होता है, उसे कहते हैं grief and pain. Then helplessness, मैंने beginning में कहा helplessness and hopelessness दो इमोशन साथ में होते. helplessness मतलब क्या? helplessness means मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या करूं. एक तरह की ऐसी हो जाती है हमारा होल पॉस्चर, फिजिकल पॉस्चर ऐसा हो जाता है, कॉल हेल्पलेस. तो इससे ऐसा होना बहुत जरूरी है कि होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, लेकिन उसे मैं निकल कर उभर कर क्या कर सकती हूँ. दैट विल बी कि मैं इसे कोप करने की कोशिश करूंगी और मैं वरी और फियर दो दूसरे जो इमोशन है उसे भी हैंडल करना कोशिश करूंगी.
तो इमोशनल रिस्पॉन्स एंड कंसर्न्स, ये ठीक हो गया आपको कोविड सिचुएशन के बारे में? शैल वी गो अहेड? या तो प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन के ऊपर कैसे जाएं? हमारा गोल क्या है? आप पढ़े, 1 मिनट, मैं हूं आपके साथ। मैंने जैसे आपसे बताया था कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, साइकोसोशल वेलबींग करेंगे, तो एक पार्ट ऑफ द सिचुएशन बारे में बात करेंगे, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी स्व को कैसे मैनेज करना, मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं, इसे कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा हूँ, मैं तो पढ़ता हूँ फ्लावर अरेंजमेंट, मैं कुकिंग सीखता हूँ, मैं ह्यूमन डेवलपमेंट करती हूँ, मैं सेल्फ हेल्थ केयर वर्कर हूँ। तो वो आपका प्रोफेशन होता है, उसमें आप कैसे मैनेज करना आप बहुत सीखते हैं। लेकिन कोई भी क्लासेस किसी ने भी लिए हैं जिसको कहते हैं इमोशनल वेलबींग या सेल्फ मैनेजमेंट, किसी ने क्लास किया है सेल्फ मैनेजमेंट में? बहुत रेयर होता है। हमारी कॉलेज में भी अगर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, आपके वहाँ बहुत से सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स होना इतना जरूरी है जीवन में कि मैं अगर अपने आप को नहीं मैनेज कर सकूं तो मैं जीवन में situations को कैसे मैनेज कर पाऊंगा? सो माई इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इन ऑल माई वर्क इज सेल्फ मैनेजमेंट। अगर स्व की पहचान है, स्व को आप मैनेज कर सकते हो, अपने गुस्सा, अपना खुशी, अपनी तनाव, अपने मैं मुझे क्या किस चीज से कंटाला आता है, किस चीज से गुस्सा आता है, ये सब आप समझोगे, उसे मैनेज करने की कोशिश करें, इट इज अ वेरी बिग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन for self-management. Okay, so I'll start first with thoughts. I always begin with thoughts क्योंकि thought is the seed. Thought is the seed. जैसे आप करेला सो करोगे, करेला बोओगे, तो आपको आम आएगा? नहीं आएगा. So if you sow a Karela seed, you will never get a mango. Oh, but then you'll say, oh, why did I not get a mango? I feel so sad I didn't get a mango. As you sow, so you reap. Is a old saying कि जैसे बो वैसा वो, जैसा बो वैसा आपको मिलेगा. सो ये थॉट जो है वो जैसे हमारी सोच वैसी हमारी लर्निंग. सो थॉट सबसे इम्पोर्टेंट सीड है. दूसरी है फीलिंग्स, हमारी भावना. तीसरी है एक्शन, जिसे कहते हैं बिहेवियर. तो आप मुझे अभी पूछोगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये अनुभव के लिए, ये वर्कशॉप करने के लिए, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो आपको मैसेज क्या मिलेगा? मैंने यौन किया, मैंने घड़ी के सामने देखा और मैं कहती हूँ मुझे अच्छा लग रहा है. तो आपकी एक्शंस आपने क्या देखी कि मेरी एक्शंस यानी मेरे बिहेवियर में और मेरे शब्द में अंतर है. मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं करती क्यों, मैं मैसेज क्या देती हूँ. तो बहुत से टाइम मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपकी एक्शन जो है बहुत, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत बता देती है. फिर भी आप कहते हैं आई डिडंट से दैट, मैंने ऐसा थोड़ा कहा, लेकिन आपकी जो एक्शन होती है वो कहती है बहुत डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाट यू एक्चुअली मीन एंड व्हाट योर बिहेवियर टेल्स. सो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन. एक्शन इज आवर बिहेवियर. देन रिलेशनशिप, इनके ऊपर आधारित है हमारे संबंध. संबंध कैसे होते हैं? 2 तरह के. इंट्रापर्सनल जो हमारे साथ होता है अपने आप के साथ, इंटरपर्सनल यानी किसी और लोगों के साथ जिसके साथ हम अपनी जीवन बिताते हैं. सो इंट्रापर्सनल यानी संबंध मेरे साथ, जिसे कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. रिलेशनशिप अदर पीपल यानी लोगों के साथ. दूसरा है हमारी इमोशंस, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी.
गिल्ट जो है हमने बात नहीं की। गिल्ट यानी अगर मुझे करना है और मैं ना करूं तो एक अंदर से भावना होती है जिसे कहते हैं गिल्ट। अरे मुझे, मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। इट इज कॉल्ड सेल्फ हार्म, कि आप अपने आप को हमेशा शक हो गया ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। सो दैट गिल्ट इज ऑल्सो अ वेरी पेनफुल इमोशन। एजिटेशन, कब एजिटेशन होता है? हर एक चीज में, अरे बाप रे ये ठीक होगा क्या? आज की वर्कशॉप के पहले या जो इनके अनुभव के वर्कर्स थे, जो इनके चार्ज में थे, सबके माइंड में क्या होता है? एजिटेशन। एजिटेशन यानी ठीक होगा कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं, ये टेस्टिंग बराबर है कि नहीं, टेक्नोलॉजी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क है, अनुभव के रिसोर्स पीपल है, तो उनको क्या होता है? एजिटेशन। ये सब ठीक होगा कि नहीं, इट्स इज नॉर्मल। पर हम अपने आप को अगर अवेयर करेंगे तो उससे कोप भी कर पाएंगे। और दूसरा है इरिटेशंस, एटीट्यूड्स, परसेप्शन। जो लास्ट में आता है एटीट्यूड परसेप्शन, यानी जैसे हमारी नजरिया, जैसे हमारी सोच, जैसे हमारी, वैसे हमारी इमोशंस होंगे। अगर मैं खुश हूं तो मैं ऐसा ऐसा करके बैठूंगी या ऐसा करके बैठूंगी। सो जो हमारी परसेप्शन से डिटरमिन करती है हमारी एटीट्यूड, हमारा behavior and hamari action. So for well-being, we need to understand emotional well-being is about psychosocial, emotional, spiritual, and physical components. So towards the end, I have 10 minutes more. I am going to talk about जो है वो हम समझें, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं is most important. क्योंकि why समझना important है, उसके बारे में what करना, that means anything in life, once you analyze, there is a paralysis. Analysis brings paralysis. यानी how do we move from analysis to action? मुझे पता है कि ये सब है, हाँ ठीक है, सबको मालूम है तनाव के बारे में, इसके बारे में, इसके, लेकिन उसके बारे में मैं क्या करूं? तो आज का जो वेबिनार है उसकी लास्ट 2 स्लाइड्स में बात कर रही हूँ, उसका है व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई कैन डू, व्हाट वी कैन डू। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, या व्हाट वी कैन डू। Okay, so first we are going to talk about time management. Maybe I'll do this later, 1 second. Okay, so time management यानी समय का उपयोग कैसे ठीक तरह से करना, न्यू रूटीन एस्टैब्लिश करने में, नए सिस्टम के बारे में, मैं अपना टाइम कैसे यूज। हर रोज मैं सुबह 6 बजे उठती थी, मे भी अभी मुझे ज्यादा टाइम है, मैं 7 बजे उठ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन नहीं लेना है, मुझे ये नहीं बनाना है, खाना भी घर पे ही खाना है, तो 1 घंटा मुझे ज्यादा मिलता है। तो वो 1 घंटा मैं अपने आप के लिए कैसे यूटिलाइज करूँ। टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठ के एक टाइम टू डू लिस्ट कीजिए, टाइम लिखिए, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कितना वक्त लेंगे उसके ऊपर। ये एक इम्पोर्टेंट है जिसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशिंग न्यू रूटीन एंड सिस्टम। दूसरा है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में अपने आप को कैसे संभालूं। सेल्फ केयर यानी नॉट बीइंग सेल्फिश, ये सेल्फिश या स्वार्थ नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं देखेंगे तो लोगों को कैसे देख पाओगे, अपना काम कैसे कर पाओगे, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट दोगे। सो सेल्फ केयर सबसे महत्वपूर्ण शब्द है आज की वेबिनार में। आज की साइकोसोशल इमोशनल इम्पैक्ट और केयर के बारे में जब हम सोचते हैं तो सेल्फ केयर मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि सेल्फ केयर आप कैसे लोगे। फर्स्ट है फिजिकल यानी एक्सरसाइज करना, जो भी आप दौड़ने जाते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड। सॉरी। सेल्फ केयर में हम 3 चीजें हमेशा बताते हैं। एक बात है
खाना, फिजिकल में आ जाता है फिजिकल एक्सरसाइज, यानी आप दौड़ने जाते हैं, आप कसरत करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन, जो भी है, फिजिकल सेल्फ केयर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। दूसरी बात है खाना। बहुत से टाइम हम खाना टीवी के सामने खा लेते हैं, काम करते करते खा लेते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं। तो ये important component of well-being is eating the right food at the right time with the right ingredients. पराठा सब्जी खा लिया, बैलेंस डाइट नहीं है, प्रोटीन चाहिए एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, सब बैलेंस फूड खाना बहुत जरूरी है। तो इंडियन डाइट में वो लोग हमेशा करते हैं रोटी, दाल, सब्जी, चावल, चारों चीज खाएंगे। तो कहते हैं नहीं आज एक चीज खा ली तो चलेगा, पेट भर गया। पेट भरना जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशियस खाना बहुत जरूरी है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेल बीइंग इज फिजिकल एक्सरसाइजेस, खाना, एंड द थर्ड वन इज सोना। बहुत इंपॉर्टेंट है स्लीप। वो कहते हैं 4-5 घंटे की नींद बहुत हो जाती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। नो, the body is different from what you think the body needs. Body needs at least 7 to 8 hours of uninterrupted good sleep. So 3 components of self-care are physical, food and sleep. इमोशनल, साइकोलॉजिकल है सब तो अलग बात है, लेकिन ये सेल्फ केयर में 3 चीज बहुत जरूरी है। उसमें पीयर सपोर्ट और इंटरैक्ट विथ फ्रेंड्स, ये भी आप कर सकते हैं फॉर वेल बीइंग। पीयर सपोर्ट यानी फ्रेंड से बात करो, आज मैं बहुत अपसेट था, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये जो पीयर सपोर्ट और इंटरैक्शन विथ फ्रेंड्स है, वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग से फिजिकल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। लेकिन फोन के ऊपर what is that called? You can talk WhatsApp with you can do FaceTime calls. आप देखकर इंटरैक्ट करेंगे फ्रेंड्स के साथ, तो आप एक तरह की खुशी महसूस करेंगे कि नाउ आई एम इन टच विद इट। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ और बिकम लोनली। डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ और बिकम लोनली। रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, किसी के साथ आप स्क्रीन के ऊपर गेम्स खेल सकते हैं, कुछ फैमिली के साथ फैमिली गेम्स खेल सकते हैं, लूडो है, ये है, गेम्स है, रिलैक्सेशन कर सकते हैं। बहुत सी चीजें जिसमें आपको प्लेजर मिले, वो करना बहुत जरूरी रहता है। दूसरी बात होती है क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम यानी सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, अपने आप के साथ बैठना। आप इतना छोटा घर में 10 लोग हम रहते हैं, कैसे क्वाइट टाइम मिलेगा? तो मिलेगा, 2 मिनट बाथरूम के अंदर बैठो, कॉर्नर के अंदर के बैठो, किसी को बताओ कि मुझे 5 मिनट अपने साथ अपना वक्त गुजारा। बिना बोले भी आप कर सकते हैं, कि कोई हंसेगा आपके ऊपर कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज क्वाइट टाइम, यू जस्ट हैव योर फैमिली, एवरीबडी लिव्स टुगेदर, देयर इज नथिंग, don't get fussy. So there is a kind of reaction that you're worried about also. So quiet time is important. Meditation, not in the technical sense, but being with yourself is meditating. Union of yourself with spirituality, with your God, with your well-being, with a divinity, with anybody that you believe in is called meditation. Yoga is physical exercises, pranayam, as well as deep breathing exercises, walk and deep breathing. Deep breathing is, according to the psychologists who are working for stress and emotional well-being, से सबसे महत्वपूर्ण है aware breathing. Aware यानी ऐसी आपको भावना होनी चाहिए कि अभी मेरा ब्रेथ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है. So deep breathing is a very important part of communication. So communication, catharsis and ventilation. 3 शब्द है। कम्युनिकेशन यानी किसी के साथ हम कैसे बात करते हैं, जितनी बात ओपन करें, कम्युनिकेशन कंटिन्यूस रखे इज इम्पोर्टेंट। कैथार्सिस यानी वेंटिलेशन, यानी अंदर में जो दबी हुई भावना है उसे बात करो, किसके साथ, जैसे जिसके साथ आपको कंफर्ट लेवल है। डोंट सप्रेस। सप्रेस इज द ऑपोजिट ऑफ कैथार्ट।
सप्रेस यानी अंदर भावनाएं रहती है, कभी ना कभी वो अलग तरीके से बाहर निकलेगी। कैथारसिस और वेंटिलेशन यानी किसी से शेयर करोगे और जिसके साथ शेयर करो उसे नॉन जजमेंटल रहना है, उसे सुनना है, उसे आपको समझना है, आपको सिर्फ एडवाइस नहीं देनी है। सो कैथारसिस एंड वेंटिलेशन is very therapeutic for yourself. अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से शेयर करो और उसके बाद। तो इसके साथ हम ग्रास रूट लेवल वर्कर से 3 एक्सरसाइज करते हैं। ये लास्ट सेंटेंस करने से पहले मैं ये 3 एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जिसे कहते हैं बॉडी स्कैन मेडिटेशन। यानी मेडिटेशन नॉर्मली पर आप नीचे सो जाइए, किधर बैठिए, सोफा के ऊपर, किधर भी बॉडी स्कैन यानी अपने शरीर के हर एक भाग के ऊपर आप अवेयरनेस लाइए। जागरूकता is the most important part of awareness. यानी आप, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, आज मेरा सर दर्द है, आज मुझे छोटी उंगली जो नीचे है उसके ऊपर मैंने आज नेल्स कट करते टाइम एक स्किन निकाल दी, तो हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर जाएगा। तो जो है खुशी और सब नॉर्मल है उसके ऊपर हमारे माइंड नहीं जाता है, जो नहीं है, जो दर्द है उसी के ऊपर जाता है। सो बॉडी स्कैनिंग हेल्प्स टू relax and to focus on things which are good, not on things that are missing. So first is called body scan. Second is called 5 senses awareness. हमारे 5 senses है। क्या है? हम किसी चीज, हर एक चीज का क्या करते हैं? 5 चीज महसूस करते हैं। सुनना, कौन सी 5 चीज हम महसूस करते हैं? हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। तो कभी आप बैठे हैं ना, तो इट इज कॉल्ड 5 सेंस अवेयरनेस। तो बिना सोचे जा मुझे किसकी स्मेल आ रही है? हाँ, यहाँ किसी ने बिरयानी बनाई है, उसकी स्मेल आ रही है। और दूसरी क्या होता है, मुझे क्या सुनाई देता है? ये कुकर की विसल सुनाई देती है। टेस्ट, मुझे क्या, नींबू का स्वाद मेरी उंगली पे था, तो मुझे टेस्ट क्या हो रहा है? नींबू का टेस्ट हो रहा है। मुझे फील बहुत गर्मी हो रही है, यार कितनी गर्मी है। स्मेल, उसके बारे में हर एक चीज का अवेयरनेस, जिसे कहते हैं 5 सेंस अवेयरनेस, इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर कामिंग डाउन। द लास्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी ब्यूटिफुल वन, जिसे कहते हैं तितली हग। ऐसे करेंगे अपने आप को, उसे कहते हैं सेल्फ हग। सेल्फ हग कोई और हमें दे या ना दे, हम अपने आप को सेल्फ हग देते हैं और ऐसे टैप करते हैं। बहुत अच्छा किया नीलिमा, आज बहुत अच्छा वेबिनार गया, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो मुझे क्या लगे, मुझे आप कुछ कहते हैं वो नहीं सुनाई देता, मैं अपने आप को टैप करके कहती हूँ, जिसे कहते हैं तितली हग या सेल्फ हग, और इसे कहते हैं बटरफ्लाई हग। ये जो एक बटरफ्लाई का शेप हो जाता है, इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई। सो इन लॉट ऑफ आवर वर्क in the last 3 months we have developed for grassroots level, जिसे कहते हैं academic master training of trainers, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनके लिए ये 3 चीज हर रोज करना इतनी जरूरी है कि वो उनको अपने आप से केयर, कंपैशन, कंसर्न एंड कंफर्ट, ये 4 चीज की भावनाएं अपने लिए और किसी और के लिए महसूस करेंगे। केयर, किसी के बारे में सोचना, कंपैशन, सहानुभूति, अनुभूति, 2 चीज होती हैं, सिंपैथी एंड एम्पैथी। कंपैशन दोनों चीज को मिलके होती है, जिसे हम एक्शन करते हैं। कंसर्न यानी आपके बारे में हमें चिंता होती है। कंफर्ट यानी आप किस बारे में हम सोचते हैं कि आप ठीक रहे। सो ये 4 चीज है। दूसरी बात जो हमने बताई थी वो प्रैक्टिसिंग, डॉक्टर लिडविन हैड सेड ग्रैटिट्यूड, कि हम ऐसी चीज, कृतज्ञता जिसे कहते हैं, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कि हमारे पास जो है उसके बारे में हम कितने खुश हैं। लेट अस अप्रिशिएट व्हाट वी हैव, लेट अस सी द होल
in the donut or the donut? Do we see the hole in the medu vada or do we see the medu vada? So that is called पॉजिटिव थिंकिंग. एंड समय की सीमा के बीच में हम काम करें कि ये सब चीज इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर में, पर समय की सीमा सेल्फ केयर टूल यानी स्व की संभाल कैसे लेते टाइम अपना काम भी अमुक समय पे करे, बाद में 7 बजे के बाद 6 बजे का जो भी आप टाइम का वर्क है वो छोड़ दीजिए, फिर अपने आप के लिए अपना टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ केयर, टाइम बाउंड्री जो मेरे हाथ में है वो समझो और स्वीकारो. ये शायद से उन्होंने I'm आंसर just किया. complaining. Okay, I'm taking the last 5 minutes. It's 12:25. Yeah, 12:30. I need to stop. Okay, everybody. Nilim, Renu, is that okay? Okay. So जब हम चीज हमेशा कुछ बंद करते हैं सेमिनार और वर्कशॉप तो टेक अवे यानी आज हम क्या इंटरैक्ट किया, हमने क्या शेयरिंग किया, हम उससे क्या सीख लेकर वापस जाएंगे. मैं और आप दोनों, मैं आपसे भी सीखूंगी और आप मैंने जो शेयर किया है वो मैं किसी और से सीखा है. सो माय वेलनेस एंड वेल बीइंग इज माय पर्सनल कंसर्न एंड चैलेंज. मेरी वेलनेस यानी स्व की पहचान, स्व का देखभाल और सेल्फ केयर किसकी हाथ में है? मेरे हाथ में. So most important is self-care before other care. Self-care is not being selfish. Please remember, self-care यानी स्वार्थी बनना नहीं है, अपनी आप की देखभाल करना ताकि हम अपना पानी का ग्लास अगर खाली है तो हम किसी को पानी दे पाएंगे नहीं पे. जो हमारे पास है वो ही हम दे पाते हैं. सो अपना पानी का ग्लास फुल रखे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर. वो पानी का ग्लास फुल रहेगा तो कोई भी प्यासा होगा तो हम पानी दे पाएंगे. So self-care before others' care. My well-being and well-being is my personal concern, my challenge, my responsibility. Being aware of what is in my control and what is outside my control. तेरे जीवन में दो चीज होती है, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और जो मैं नहीं कर सकता हूँ. वो दो चीज की अवेयरनेस यानी जागरूकता होनी जरूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में मैं चिंता नहीं करूँगा. इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी टू वरी अबाउट व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल. सो अगर हम कहें कि स्व की संभाल में क्या करना है, दो चीज समझना और स्वीकारना है. जो मेरे हाथ में है वो समझो, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे क्या करो? स्वीकारो. सो हकीकत में दृष्टिकोण, नजरिया अपना है और उसे समझना बहुत जरूरी है. तो लास्ट में मैं कहूंगी इट इज ओके टू सीक सपोर्ट. आपको अगर किसी की मदद की जरूरत पड़े तो पूछना, इट इज फाइन एंड इट इज ओके टू सीक सपोर्ट फॉर पर्सनल एम्पावरमेंट एंड फॉर सेल्फ केयर. तो एंड में टेक अवे में आपके साथ मैं 5 शब्द आपके पास में दे दूंगी. Please listen to every word. First I'll say it in Hindi, then in English. अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु. So 5 शब्द repeating. अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु. ये जो 5 शब्द हमारी लाइफ में है, they stop us from understanding कि जो है वो है. उसे हम कहेंगे लेकिन ऐसा होता तो, ऐसा न होता तो, किंतु ये है, परंतु जब वो चला जाएगा. अभी क्या हकीकत है? जो है वो है, उसे स्वीकार करो. अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु से परिस्थिति बदलेगी नहीं, आपकी सोच को पॉजिटिव लाना जरूरी है. इन इंग्लिश वी से देयर आर 5 hurdles टू एक्सेप्ट: could, would, should, if and but. यही 5 शब्द इंग्लिश में हैं: could, would, should, if and but. Again, they stop us from accepting जो है वो है. So I just want to conclude. Thank you very much to College of Social Work, Anubhav, and the team of Anubhav, and Dr. Renu, with whom I have been interacting, and Sandesh and Nilima, and all of you, Swati, for giving me this opportunity to share my learnings with you, for me to learn, unlearn, relearn,
about the situation. Thank you very much. Miss Thank you so Rodriguez, much, ma'am. go ahead. Yes. Your session reminded me of my BSW sessions of human behavior. Yes, absolutely. एंड आई थिंक हमें लगा ही नहीं कि एक रिसोर्स पर्सन हमें कुछ सिखा रहे हैं. हमें लगा कि एक टीचर छोटे बच्चे को पढ़ा रही है वो लेवल पे जाके. So thank you so much ma'am for this insightful session you have conducted today. And I'm sure कि हमारे youth थोड़े equipped हो गए हैं अभी कि how they are going to take the positive action whatever they do in the future or while doing the future plans. So thanks a lot, ma'am. Thanks for everything. And now I will invite Dr. Renu Shah to facilitate the question answer session. So over to Renu, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon, all. Ma'am, it was really interesting and very insightful, very practical session. Thank you so much for that. Thanks you. a lot. Yeah. We'll take up, I'll read out the questions. We have few questions. I'll read out Sure. one by one. Yeah. Sure. So first is, what if a person is staying all alone and going in depression day by day? The first one. Yes. Yeah, like I said, depression is a very disturbing emotion. Don't try stay alone. Even if you're physically alone, make phone calls, talk to friends. जो अकेले रहते हैं उसके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है. किसी के साथ फिजिकल डिस्टेंस रख के भी आप अगर नीचे मिल सको, बोलो कि आज हमारी बिल्डिंग में आओ, मैं आपकी बिल्डिंग में आऊंगा, हम दूर रहकर भी बात करेंगे, या टेलीफोन लेकर बात करो, या फेस टाइम करो अगर आपके पास ये सुविधाएं हैं. लेकिन जब डिप्रेशन में है, अकेले मत रहो, मत रहो, मत रहो. I cannot emphasize this more because depression, pain, loneliness is an emotion in which people are more important than anything else. Social interaction बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मत रखो. Okay. दूसरा क्वेश्चन है मैम, how does a person know if the another person is in distress, especially if the personality is a chronic introvert personality? Yeah. तो जो क्रॉनिक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, उनके साथ अगर आप फोन पे बात कर रहे हो, टेली काउंसलिंग कर रहे हो या ग्रुप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो हमेशा पूछना जरूरी है, आप क्या क्या महसूस कर रहे हो, कौन सा शब्द यूज कर सकते हो. तो आप उनको शब्द दीजिए. आपको खुशी है, आपको अकेलापन है, आपको ये है. आप किसी के पास वोकैबुलरी नहीं होती है, यानी किसी के पास शब्द नहीं होते हैं कि वो कैसे बोले. लाइक चाइल्ड के साथ हर एक चीज में आई एम एंग्री, आई डोंट लाइक इट नहीं. अब व्हाट आर यू अप, सो गिव वोकैबुलरी टू देम टू एक्सप्रेस. तो एक्सप्रेस करना, प्रोसेस करना बहुत जरूरी है. सप्रेस मत करने दीजिए. Then we have sometimes worry about the past affecting present and anxiety about the future can lead to ruin the present and mental health. What to do in such a situation? Absolutely. Such a focused question. जैसे मैंने कहा कि दो चीज समझना जरूरी है. इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ, पास्ट के बारे में मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं. पास्ट की जगह कहाँ है, पास्ट में. फ्यूचर की जगह कहाँ है, फ्यूचर में. अभी माइंडफुलनेस, आज सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जीवन में है माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग इन द हियर and now. What's most important is when you can't control the past, you cannot control the future, be in the now. Be mindful of अभी, इस वक्त जो हो रहा है. अभी जैसे मेरे साथ आप हो, तो आप ये मैं कह रही हूँ वो सुनिए, लेकिन मुझे ये चिंता है, मुझे वो होगा, तो छोड़ दीजिए. अभी जो है, there is a skill that they say in mindfulness, may let your hand be where your mind is.
तो अगर आप, और you let your mind be where your hand is. एग्जाम्पल कैसे कहते हैं, आप हाथ धोते हैं ना, बहुत टाइम बताया है कि कोविड में जितना हो सके आप हाथ धो, तो हाथ धोते टाइम हाथ धोने का उंगली पे हाथ दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए. Be focused in the now, not the past, not the future. Okay. Then what to do when somebody gets panic attack, nervous breakdown, tips regarding that? Immediately seek professional help. Nervous breakdown or panic attack is a sign called the red flag. Red flag यानी किसी की मदद लेना अभी जरूरी है. आप ऐसा स्ट्रांग मत रहिए, दिस विल गो, चला जाएगा, अभी मैं महसूस कर रही हूँ, बाद में होगा, नहीं. It's a red flag. Take professional help, a friend's help, somebody who can guide you. Then we also have another question. If a person is getting too aggressive and angry, how to handle the situation? Handle the person and the situation. Yeah. So when the person is getting angry, you have to understand from that person's perception, why is it? So when they say anger is an expression of frustration, pressure, agitation, anxiety, or depression. So anger is a symptom. Anger is not to be treated. What is to be treated is the symptom. यानी जो दिखाई दे रहा है वो तो एक सिम्टम है. तो आपको बुखार होगा तो बुखार की दवा देंगे, लेकिन आपको इलनेस है से टाइफाइड, तो जब तक टाइफाइड की दवा नहीं मिलेगी तो सिर्फ बुखार नीचे आ जाएगा. सेम वे एंगर को आपको एड्रेस नहीं करना है, एंगर के पीछे जो भावना है उसे एड्रेस करना जरूरी है. सो एंगर हैज टू बी एक्सप्लेन्ड, नॉट एक्सप्रेस्ड, नॉट सप्रेस्ड, but processed through explanation. Then one more question is there. Why does it happen that despite being learned, achieved great strides in life, having and knowing the coping skills of stress, people give up on life? Yes. That is so true. Thanks for this question. Education and human behavior are not linked. Knowing is one and doing is another. जानना एक बात है, करना दूसरी बात है. दोनों में इतना अंतर है कि ये जो आपने कहा वो प्रॉब्लम्स होता है कि एकेडमिक लर्निंग नॉलेज से कुछ नहीं होता है, अवेयरनेस से होता है. सो शब्द है जागरूकता, अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस. अगर आप अभी माइंडफुल होंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये माइंडफुलनेस से जो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस यानी जागरूकता, तो जागरूकता से एंगर मैनेज करेंगे. ये नहीं करना है, नहीं करना से नहीं होगा. Also ma'am, having our own support, हमारा अपना support system, relationships, because like especially जो भी situation हुआ सुशांत सिंह राजपूत का, उसी context में काफी चीजें आ रही हैं मुझे लगता है. So having support system, somebody to talk to, वो भी ना होना एक बहुत बड़ा vacuum है life में. Absolutely. Yeah, Dr. Renu, what you have said is so correct. कि जो void जो नहीं है हमारे जीवन में, जिसका खालीपना जो कहते हैं, जिसका हमें महसूस होता है कि मैं अकेलापन महसूस कर, अकेला होना by choice और अकेलापन are two different things. So अकेलापन जब होता है तब ऐसा लगता है कि there is nothing to live for, which is called gloom and doom. Gloom is a feeling of hopelessness, doom is a feeling of helplessness, and hopelessness के आगे कुछ होने वाला नहीं है. So इस emotions को आप नेगेट नहीं कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे निग्लेक्ट मत कीजिए, उसे किसी के साथ बात करके प्रोसेस कीजिए. Then ma'am, things are coming with regard to post-stress traumatic disorder after COVID-19. People may go out, meet people, not able to cope up well. So what about that? Those aspects? Yeah. So PTSD is one of the post-trauma stress disorder, is a syndrome. It's a very, very critical reaction to stress or any kind of trauma that you have got. There could be sexual abuse, there can be physical abuse, there can be trauma of any kind. Definitely this is a possibility कि trauma होने के बाद अगर मुझे ये सब महसूस हुए, once again
अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, किसी से बात कीजिए, उससे भी आपको महसूस ना हो कि अच्छा है तो डेफिनेटली सीक प्रोफेशनल हेल्प। अब मैं ये कहना चाहूंगी, मेंटल हेल्थ जो स्टिग्मा है, हम कैसे किसी को कह सकते हैं, किसी के पास कैसे जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, कैसा लगेगा, मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, दोज वर्ड्स दैट वी यूज फॉर मेंटल वेलनेस, मेंटल वेलबीइंग हैज टू शिफ्ट। कि अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर के पास जाने में कोई स्टिग्मा नहीं है ना, तो आपको डिप्रेशन है तो डॉक्टर के पास जाइए, उसमें क्या स्टिग्मा है। सो पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर कैन बी हैंडल्ड विद प्रोफेशनल इंटरवेंशन। Then ma'am, our participants are writing कि before COVID काफी planning था job का, job के लिए search करना है, now everything is closed and lot of uncertainties है, तो उस dilemma से, उस situation से कैसे deal किया जाए? फर्स्ट, जैसे मैंने एंड में कहा, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी शब्द इटसेल्फ मीन्स क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई कह सकता है नहीं, आप कह सकते हैं नहीं, मैं कह सकती हूँ नहीं। तो अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना कि जो है वो है, हकीकत को ऐसे नहीं अभी जो क्या करेंगे, जो है वो है, मेरे नसीब में था, ये आपके नसीब में नहीं है, ये संजोग है, ये सिचुएशन सब उसी संजोग में है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द इनएविटेबल। इनएविटेबल जो होना है वो होगा, जो है वो है, अगर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, ये 5 शब्द से हकीकत नहीं बदलेगी। जो है उसे हम कैसे सामना करें, वो स्किल डेवलप करें। सो कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। नॉलेज एक बात है, स्किल अलग बात है। नॉलेज यानी मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट है। I think we'll take one last question. Yeah, sure. Yeah. What are the extreme effects of psychosocial and emotional well-being when not taken care of? Like if I am not emotionally well, how does that affect my body? Let's think of the best and not the worst. But I would like to answer this question कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट से, जागरूकता से, अवेयरनेस से अपने आप या किसी और की जो क्षमता है जिसे कहते हैं एम्पावरमेंट करेंगे तो जरूर आप कोप कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, कोप न कर पाए तो जरूर हेल्प लीजिए, सीक हेल्प, डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प। तो ये सब हम अच्छी तरह कोप कर पाएंगे। थैंक यू। Ma'am, there is a request. Please take the last question. So I'll read out that question. It has come in the chat box. That will be the last one, final last one. Hello, ma'am. Thanks for the lovely session. What a person do if he is aggressive in small things, and also family thinks that he's mad, but actual problem is depression. And because of COVID crisis, we cannot go out. So that we can do now if one gets caught of doing something worse because of not having family support. Correct. Thank you. This is the last question, but a very, very meaningful one. कि anger, frustration, pressure, वो जो सब बाहर आते हैं अंदर से, उसकी सिम्टम, वो एक सिम्टम है, वो कॉज नहीं है। तो समझना जरूरी है। केयर, कंपैशन, एम्पैथी, कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ मुझे सहानुभूति है, उसके साथ मुझे कंपैशन है, मुझे अनुभूति है कि आपको ये महसूस हो रहा है, लेकिन आप उसे गुस्सा, हर एक चीज में गुस्सा करने के बदले उसके बारे में मुझसे बात करोगे, उसे प्रोसेस करोगे, समझने की कोशिश करेंगे तो इसे, तो उन लोगों के साथ बहुत पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, और समझना है कि इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। Angry person needs help, and your help, compassion, will help that person to cope. So thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much for patiently taking up all the questions. No, not at all. And giving responses very appropriately. पूरा सेशन में मैम ने काफी practical way से पूरा सेशन कंडक्ट किया, very interactive, and at each point you were asking, are you with me, are you following? So that was, keeping us engaged. I hope the participants pura throughout the session, they were quite engaged in the session. Thank you so much, Reena. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now it's time for me to propose the official vote of thanks. On behalf of College of Social Work, I would like to propose the official vote of thanks
to Dr. Nilima Mehta ma'am, our resource person for the session, for taking the session in a very interesting way. First of all, for accepting our request for taking the session. आपने request accept किया हमारा, just in a one phone call you said yeah, you let me know the time and the date, I'm there. So that was a very positive help, ma'am. And even throughout the before the session, planning for the session, थीम बिल्डअप करना सेशन के लिए, वो पूरा आपने एक प्रोसेस में हम लोगों को गाइड किया, डायरेक्शन दिया. दैट वाज आल्सो वेरी enriching and understanding and also very learning process for all of us. Thanks for that. And also for conducting the present session, जहाँ पर आपने you began with highlighting कि ये situation बहुत ही unique situation है हम सबके लिए. All of us are facing the feelings, emotions of helplessness, hopelessness. बट इस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है. सेल्फ केयर की आपने बात की, आपने डायमेंशंस ऑफ साइको सोशल इमोशनल वेलबींग की बात की, काफ़ी इलैबोरेट, प्रैक्टिकल एंड सिंपलिस्टिक वे में आपने ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया. कॉन्सेप्चुअल वेलबींग, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, concept of wellness and well-being, all that you highlighted, different dimensions you highlighted, expression of well-being, wellness that you highlighted, and also the focus of your session was in terms of managing your wellness and well-being, managing your own self, taking care of your own self. That came out very strongly in the session, and that's what we were intending for, and we wanted the youth to provide these kind of tips, which have come out very beautifully in your session, ma'am. We are very, very thankful to you for conducting this session, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और प्रैक्टिकल टिप्स मुझे लगता है हम सबको मिली हैं, नॉट जस्ट यूथ पार्टिसिपेंट्स बट ऑल ऑफ अस हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स. तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम. थैंक यू. आपके सेशन के काफ़ी टेक अवेज हैं जो आपने खुद भी हाईलाइट की हैं. सेल्फ केयर, सेल्फ मैनेजमेंट, लिसनिंग, सपोर्टिंग, बीइंग देयर फॉर द पीपल, एंगर, फ्रस्ट्रेशन इज अ क्राई फॉर हेल्प, जैसा आपने अभी बोला, टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, कैथारसिस, वेंटिलेशन, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हुई हैं विच आर वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली फॉर यूथ हु आर इन these uncertain times, who are having an uncertainty with regard to their future also. Thanks ma'am, thank you very much. Then I would like to propose vote of thanks, sincere thanks to our principal, Dr. Ledwin Dias, our technical team, management of the College of Social Work Nirmala Niketan Institute for their constant support. और थ्रू आउट उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, टेक्निकल टीम का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हम आज का वेबिनार का वर्कशॉप कंडक्ट कर पाए. अदरवाइज इतनी आसानी से ये पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स टू आवर एक्सटेंशन स्टाफ मेंबर्स under the leadership of Ms. Nilima Roberts. Thanks to all of them for being there and for taking up everything in the great stride and just accepting whatever is being given and whatever is coming through their facing the situation, and they're helping. All of us are helping each other in terms of making this webinar a successful event for all of us. Thanks to all of them. Last but not the least, thanks to all our participants, youth from colleges, from our own college, Nirmala Niketan Social Work College, from Anubhav Mumbai colleges, from different communities who have participated. आज के जिन्होंने जिस सेशन में सबने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स. और इस सेशन में आपको सीखने को काफ़ी मिला है और साथ ही साथ हमें भी काफ़ी डायरेक्शन मिली है, काफ़ी नॉलेज मिली है और एक सेंसिटिविटी आई है कि स्टूडेंट्स, यूथ जो है आज का किस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहा है, किस तरीके के डायलेमास में है, क्राइसिस सिचुएशन में है, किस तरीके के डाउट्स उनके माइंड में हैं. And for actively participating, for putting up your questions during the session. Thanks to all of you, and I'm sure all of us have got a lot from this session, and wishing all our participants a very best luck. And I hope कि जो मैम ने आज टिप्स दी हैं वो हम काफ़ी अच्छी तरीके से हम सब लोग अपने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ज़रूर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. Thank you very much, ma'am. Thank you to each and everyone. Thank you very much. So now we declare the session closed. I think we can now declare the session as closed. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you once again. Thanks to everyone. Yeah, thank you. Yeah.